आप सबको मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो सकती हूँ। I'm happy to be here again for my message this evening, and I want to wish all of my viewers a very happy day. Thank you for listening to my messages, which I prepare with the help of God and the Holy Spirit. Thank you for sharing my messages with others. ईश्वर आपको आशीष दे, जैसे आप अपने जो मेरे जो मैसेज हैं वो दूसरे लोगों में शेयर करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, once again we submit ourselves into your care for helping me to prepare this lesson. God, I only know I keep making mistakes and you keep forgiving me. And therefore, once again, I want to submit myself so that I will not be able to make any mistakes and my slides will go on as I want them to be going on. With your help and without your plans, nothing is going to work out. And therefore, accept my message as they are and help me to go forward in life and be committed in serving you in the best of my ability. Thank you, God. Forgive my sins once again. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने बोला कि मेरे मैसेजेस जो हैं परमेश्वर के द्वारा मुझे सहायता मिलती है और मैं जो हूँ वैसे ही मैं तैयार करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर हमेशा मेरी जैसे मदद करता है वो आपकी भी करता है। और आज का जो मैसेज हमारे पास है वो है दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय 1 से 17 आयत। Second Kings chapter 77 verse 1 to 17 is my message for today. And let's see what the message says in today's lesson. And we will see here. Come and see, go and tell. So when we look at here, come and see and go and tell. Now it says come, that means something has to be seen. Unless we go, we cannot tell. Unless we come, we cannot see. जब तक हम आएंगे नहीं तो देखेंगे नहीं, और जब तक हम जाएंगे नहीं तो हम बता नहीं सकते। तो आज का मेरा लेसन जो है यहाँ पे 4 कोड़ियों के बारे में दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि ये कोड़ी के द्वारा कैसे परमेश्वर ने सहायता की। हम देखते हैं कि यहाँ पे Second Kings 7:1 says, Then Elisha said, Listen to the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a measure of the flour will be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Now when you look at here, तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरन के फाटक में 1.25 भर मैदा और 1 शेकल में 2 सवा जौ भी 1 शेकल में बिकेगा। तो यहाँ पे जो है एलीशा नबी जो है एक भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि इजराइलियों के टेंट में शोमरन के फाटक के अंदर जो शहर है वहां पे अकाल आया हुआ है, और बाहर जो है सीरिया की आर्मी है, दुश्मन के तंबू लगे हुए हैं, जो कि कोशिश में है कि कब इजरायली लोग उस गेट को खोलें और वो अंदर जाके उनको मारे। अंदर से ये लोग बाहर नहीं आ सकते और बाहर से वो लोग अंदर नहीं जा सकते, और अंदर जो अकाल है और उस अकाल में लोग भूखों मर रहे हैं। इसलिए जो है एलिशा को ये भविष्यवाणी करनी पड़ी कि कल इसी समय तुम्हें 1.25 भर मैदा और 2 सवा जौ 1 ही शक्ल में मिलेगी, इतनी सस्ती। ये भविष्यवाणी जो थी एलिशा नबी ने की। It was Prophet Elisha who was making this prophecy that tomorrow, same time, you will be given a flour of a flour and 2 measures of barley for a shekel. Now, this was very necessary because people had no money during the time of famine, and so God is making provision for them. परमेश्वर उनके लिए एक रास्ता खोल रहा है।
यहाँ पे देखें दूसरा राजा 7:2 में, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पे राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो दिखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ ना खाना पाएगा। The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of the heaven, could this happen? You will see it with your eyes open, answered Elisha, but you will not eat any of it. Now, Elisha had to make second prophecy when he saw the trusted servant of the king is telling him, is it possible for God to open the floodgates of heaven and provide? This is next to impossible, because this man, a trusted man of the king, did not believe in God, did not believe the prophecy which Elisha was trying to say. And therefore Elisha had to tell him, you will see, but you will not eat it. हम यहाँ देखते हैं कि एलिशा ने बोला, तुम देख सकोगे मगर तुम खा नहीं पाओगे, क्योंकि उस सरदार ने, जो कि राजा का बहुत ही ट्रस्टेड विश्वासी सरदार था, उसने जो है क्वेश्चन किया, उसने एक शक पैदा किया, क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? कभी नहीं। परमेश्वर अपने झरोखे खोल के भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने शक पैदा किया, तभी एलिशा को ये बोलना पड़ा कि वो देखेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा राजा 7:3 में 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। There are 4 lepers sitting outside the gate of Shomron, and they were also in the same situation that the people of land Israel were. And they were outside the gate because they were lepers. They were outside the gate because they were unclean. They were outside the gate because they could not enter the city. They were outcast by the society. Yet they and the people of Israel had the same problem, hunger and starvation. दोनों के अंदर, जो बाहर गेट के अंदर और जो गेट के बाहर थे, उनमें एक ही समानता थी। कोढ़ी भी भूखे थे, इजरायली भी भूखे थे। कोढ़ी अनक्लीन थे, इजरायली जो है पाप कर रहे थे। कोढ़ी अंदर जा नहीं सकते थे और इजरायली बाहर नहीं आ सकते थे। इसलिए दोनों जगह में भयंकर काल पड़ा हुआ था और वो लोग मर रहे थे। लेकिन कोढ़ी के दिमाग में, चारों कोढ़ी के दिमाग में 3 ऑप्शंस आते हैं। There are 3 options. First one, do nothing and die. कुछ मत करो और मर जाओ। ये पहला उनका था सोच। दूसरी सोच थी, go into the city and die. शहर के अंदर जाओगे तो लोग मार देंगे, क्योंकि वो कोढ़ी हैं, अनक्लीन है। तीसरा जो था, go to the camp of Syrians where they might die, but who knows? Okay. तीसरा जो उनके पास सोच थी कि सीरिया के जो तंबू हैं उनके अंदर जाओ, क्या पता। ओके, हु नोज, क्या पता। इसका मतलब यह है कि उन्हें खाना भी मिल जाए और वो बच जाए। और उन्होंने जो है पहले और दूसरे सोच पे अपना आइडिया, उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे लिए अच्छा ये है कि हम बाहर रहें तो भी हम मरेंगे, सीरिया के कैंप में जाएं वहां पे हम मरेंगे, लेकिन वहां पे जाएं क्या पता हम बच जाएं, इसलिए बेहतर यह है कि हम सीरिया के कैंप में जाएं। They thought it is better that we go into the Syrian camp. Who knows, they might be saved and they will get food to eat. So therefore, the third option they had, they chose. When we look at here, this was not their thought. This was the plan of God. ये परमेश्वर का प्लान था, जिसको कि उन्होंने मन में उनके डाला गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम
ये सामने जो हमारे तंबू है इनमें जाएंगे, और या तो हम मरेंगे या हम जिंदा होंगे, लेकिन हम सामने तंबुओं में जरूर जाएंगे। ये परमेश्वर का प्लान था, जिसकी वजह से वो अंदर गए। हम यहाँ देख रहे हैं कि शहर के फाटक जो थे शाम के समय बंद हो जाते थे, और दिन में चौकीदार रहते थे जो कि पुड़ियों को अंदर नहीं आने दे सकते थे। And we see the lepers had to be outside the city because they were unclean. They could not enter the city, and therefore they were struggling, they were starving, they were all kinds of problems they were facing. But then God was using them as the means, and therefore He put in their mind that they should go into the Syrian camp and see what happens next. उन्हें परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि तुम वहां पे जाओ और देखो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं हिंदी में थोड़ा सा इसको पढ़ूंगी कि कह रहा है, यदि हम कहें नगर में जाएं, ओके, अगर हम कहें कि नगर में जाएं मर जाएंगे, जैसे कि मैंने 3 ऑप्शंस बताए, तो उन्होंने कहा कि हम जाएं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर हम कहें तब वे सांझ को आराम की छावनी की छोर पे पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। बेस्ट है जाके देखा जाए। और आराम की जो छावनी थी, जो तंबू लगे हुए थे, वो वहां पे पहुंचते हैं और तंबू सारे खाली है। ये तंबू खाली कैसे हो गया? हाउ वर द टेंट्स एम्प्टी? Why the people were not there? That is the main thing to be noticed here. And therefore God is sending them to the place where they would get something to eat, there where they will be saved from the starvation. यहाँ पे कह रहा, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को, रथों और घोड़ों की भारी सेना को आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पे बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। Now God put in their mind, in the minds of Armenians, that these are Hittites and Egyptians. Those will come, and they are coming. The sound of the enemy coming on their horses, coming on different ways, and the shouting and coming towards their camp. God put that in the minds of these Armenians, and they feared and they ran away because they didn't want to be killed by the enemy which was coming there. But this was not the enemy, this was only the sound which they were made to feel that enemy is coming to kill them. So the tents were empty. वो जो तंबू थे वो खाली थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो आवाजें सुनाई कि एक मिस्री और हित्ती लोग जो हैं आ रहे हैं और उनको मारेंगे। इसलिए तंबू के लोग जो थे, आराम के आदमी वहां से भाग जाते हैं। इसलिए वे सांझ को उठ के भाग गए और अपने डेरे, घोड़े घोड़े गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ दी। उन्होंने घोड़े भी छोड़ दिए, उन्होंने गधे भी छोड़ दिए। जैसा सामान था खाने पीने का, जैसा सामान था उनके कपड़े, सोना चांदी, सब ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। See the provision of God, how God makes it possible for these people to run away from the people of God. And then He is providing, as per the prophecy made by Elisha, that they will have everything in 1 shekel, flour and the maida. So when we look at here, it has got provision through the lepers. When these lepers came to the utmost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again and entered into another tent and carried thence also, and went and hid it. What did they do? They went into the tent, they got the food, they eat and they ate. They took the raiments, they took the gold and the silver, went and hid in their tents, again came back to the tent, again they did the same thing, again they came back. But then while they were doing this, they thought this is not right. जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुस कर खाया, ओके, और पिया, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाके छिपा रखा। फिर लौट के दूसरे डेरे में घुस गए
और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। कैसे वहां पे तंबू बने हुए थे, एक तंबू से दूसरे तंबू में ये कोढ़ी लोग जाते हैं और वहां पे जाके वो सामान लेते हैं, खाने का भी लेते हैं, कपड़े भी लेते हैं, सोना चांदी भी लेकर अपने टेंटों में जाके छिपा लेते हैं। जब वो ऐसा करते हैं, उन्हें लगता है कि वो सही नहीं कर रहे। यहाँ पे कह रहा, दे सेड वन टू अनदर, वी डू नॉट वेल, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। दिस डे इज डे ऑफ गुड टाइडिंग्स, आज का दिन तो खुशी का दिन है। एंड वी होल्ड आवर पीस, हमें अपनी शांति बरकरार रखनी है। इफ वी टेरी टिल द मॉर्निंग, अगर हम सुबह तक देर करेंगे, some mischief will come upon us, हमारे ऊपर कोई कठिनाई आ जाएगी। Now therefore come that we go and tell the king's household, इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम राजा के घराने में ये सुसमाचार दें कि यहाँ पे खाने के लिए कपड़ा, सोना, चांदी बहुत कुछ है, आओ और आप भी यहाँ से निकालो। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं, they could feel that they were not doing right, because if they are making for themselves, what about the people of God? So they thought, we will tell them that they should also come and take things from here. So this was again put by God in their mind. परमेश्वर ने उनके दिमाग में डाला, जो तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे, दूसरे लोगों को भी ये मैसेज दो ताकि उनको भी खाना मिले। तो इसलिए ये वो शोमरन के फाटक पे चौकीदारों के पास चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, देखिए क्या रहे हैं यहाँ पे। तब वे चले गए और नगर के चौकीदार को बुला के बताया, हम जो आराम की छावनी में मर गए तो क्या देखा कि में गए तो क्या देखा, वहां कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं, डेरे जैसे के तैसे। So they went and called out to the city gatekeepers and told them, we went into the Armenian camp and not a man was there, not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys, and the tents left just as they were. Now they are telling the people of this area at the gate, they could not enter the gate. They can only shout to the gatekeepers. They could only shout a shout of joy. They could only tell them the good news that we have eaten, we have taken, you also do the same thing. And there are only horses and donkeys, and the tents are all empty. So when they do this, they have done something which God wanted them to do. They have told them their part. उन्होंने गुड न्यूज, सुसमाचार चौकीदार को बताया, चौकीदारों ने वो सुसमाचार राजा को बताया, और राजा ने जो उनका जो ट्रस्टेड विश्वासी सरदार था, उसको इस सब का इंचार्ज बनाया कि शहर में जितने भी लोग हैं सबको बोलो कि वहां जाएं और वहां सामने तंबुओं में सब सामान लेकर आए। और ये लोग जो है, जब शहर के लोग, इजरायली लोग जब देखते हैं कि राजा ने ये मैसेज भेजा है, तो उनमें भगदड़ मच गई। हम देखते हैं कि जब भगदड़ मच जाती है, वो सूबेदार जो कि जिसको राजा ने इंचार्ज अपॉइंट किया था, वो गेट पे जाता है वहां पे ये देखने के लिए कि लोग सही ढंग से जाएं, भगदड़ ना मचाएं और उसकी बात को माने। लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा उत्साहपन होता है, लोगों में इतनी खुशी होती है कि वो खाने के नाम से, वो कपड़े और सोने के चीजों के नाम से वो वहां पे भाग दौड़ हो जाती है। कोई अपने रथ लेके जाता है, कोई खच्चर लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। और ये जो सरदार है, जो कि राजा का आदमी था, ये गेट पे खड़ा है और वो लोग जो है, इसके ऊपर जो है, एक ने इसको गिराया भागते भागते भागते, और इसके ऊपर जो है लोग इसको दबाते चले गए। Those people kept trampling him under their feet, under the feet of their horses and donkeys. And this man could see, as per the message of Elisha, you would see but you would not eat. परमेश्वर के भक्त ने जो उसे बोला था, तू देखेगा
लेकिन तो खा नहीं पाएगा। यहाँ पे वो देखता रहा और वैसे ही लोगों ने उसे उसको दबा दिया, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और देख के उसको जो है मर जाता है। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ओके, चौकीदारों ने राजभवन के भीतर जब समाचार दिया, उन्हें समाचार मिला, लेकिन ये आदमी जो कि परमेश्वर का भक्त था, इसने परमेश्वर के भक्त की मजाक उड़ाया। जब हम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं या परमेश्वर का भक्त का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने विश्वास नहीं किया, इसलिए एलीशा ने बोला तू देखेगा मगर तू नहीं खा पाएगा। और वही होता है कि उसे लोगों ने अपने पैरों तले कुचल दिया, वो देखता रहा और वैसे ही वो मर जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे, एंड द किंग अपॉइंटेड, वो सूबेदार को एक इंचार्ज के तौर पे अपॉइंट किया, लेकिन वो लोगों के पांव के नीचे दब के मर गया। ये परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। He did not believe the man of God, and therefore the prophecy was fulfilled when people ran towards the enemy camp and they trampled him under their feet. What a sight this would be when we don't believe God. What are the lessons we learned from there? इस कहानी से हम क्या सबक सीख रहे हैं? अगर हमने पाप किया है तो हमें उसकी सजा भुगतनी है। There is suffering for sin now and hereafter. इजरायलियों ने पाप किया और उन्हें भूखों मरना पड़ा। God can provide for us beyond anything we could ever imagine. एलीशा ने बोला तुम देखोगे मगर तुम खा नहीं पाओगे। परमेश्वर किसी भी तरीके से अपनी प्रोविजन, अपना इंतजाम करता है। इजरायलियों को मन्ना दिया 40 साल तक। He provided manna for 40 years to the Israelites when they came out of Egypt. And he provided food and bread for Elijah when he ran away from Jezebel. He sent him to the widow of Zarephath, where he stayed as long as the famine was there. जब तक famine रहा, वो वहां पे राय लिया। हम देखते हैं यूसुफ ने अपने भाइयों की देखभाल करी जब कनान में वो अकाल आया। God has his own way of providing for the people in times of trouble, whether it's drought or famine or flood. God provides through his means, through his prophets. And therefore we must not mock God. परमेश्वर का हमें मजाक नहीं उड़ाना। हम परमेश्वर का भक्त का मजाक उड़ा रहे हैं तो हम परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। We see here, this man did not believe and so he was trampled under their feet. We must be willing to share our physical and our spiritual blessing. वो कोड़ियों ने अपना सब कुछ, ने कहा आज खुशी का दिन है, हम अकेले क्यों ले रहे हैं? हमें ये सामान जो है, हम चाहते हैं कि हमारे इजरायली भाई हैं, हम चाहे अनक्लीन ही क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, कोड़ी हैं, लेकिन हमें ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने चौकीदार को थ्रू संदेश दिया इजराइल की कौम को, और उन लोगों को भी खाना मिला। लेकिन उस सरदार ने देखा खाना तो मिल रहा है, लेकिन वो खा नहीं पाया, क्योंकि इजरायलियों के पैरों के नीचे वो दब के मर गया। ये है हश्र, जब हम परमेश्वर के ऊपर बिलीव नहीं करते। वी मस्ट बी अर्जेंट इन आवर वर्क फॉर क्राइस्ट। हमें परमेश्वर के काम में देरी नहीं करनी, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके काम में लगे रहें और हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करते रहें। प्यारे खुदा, हम शुक्र करते इस अच्छे पैगाम का। हम जानते हैं कि हम गलती करते हैं, लेकिन खुदा तू इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा। मैंने अपना काम किया है, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है, वो परमेश्वर में मर गए, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ दूसरे लोग एस्थमेटिक, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो उनको चंगाई दे ताकि वो चंगे होके तेरे नाम की गवाही दे सके। दे उनके घरों में खुशियां बनी रहे, उनको आशीषित कर। जो भी इस पैगाम को सुने उन्हें आशीषित कर। यही मेरी प्रार्थना है खुदा, मेरे पापों को क्षमा कर, इन लोगों के पापों को क्षमा कर, ताकि एक स्वर्ग राज्य में हम अपना स्थान प्राप्त कर सके जब तू हमें आएगा लेने के लिए।
यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू as we go through this. Okay, we'll see you again soon.